thing that we have covered is how to traverse the string, how to traverse the specific string. For loop से कर सकते हैं. Using for loop. Yes, using for loop we can traverse our string. Okay. Then we have performed. We have seen different operation on string. Which are those? Concatenation, appending. Appending, multiplying. Yes, concatenation, appending, multiplying and last one जो हमने देखा नहीं था actually slice operation, वो आज देखेंगे. Okay. So anybody can tell me what is the difference between appending and concatenation? In concatenation, you make a third variable and you join the first two strings in that. And in Okay. appending, in where if you have a string 1 and string 2, so you can append it without making a third string. Yes, that is correct definition of that difference between the concatenation and appending. Okay. Which of the operator is used? Which operator is used for appending? Which operator? Plus is equal. Plus Plus is is equal equal to. to. Okay. Yes. How was your exam? Today's exam, unit test 1. How was your exam? Okay. But most of the students have silly mistakes they have done, I think. For example, one question is there regarding simple question is that first version of Python. Yes. 19. Most of the students have written 1994. Again, that another question is there. In that case, question also one of the question like, for example, which of the following statement condition is true? Condition means 9 is equal to likewise question is there, I think. So in that question also, most of the students have made the mistake. That first option is not correct. There I have written, I have mentioned 9 is equal to equal to double equal to नहीं था वहाँ पे क्या था? हेलो असाइनमेंट ऑपरेटर था. असाइनमेंट ऑपरेटर था वहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर नहीं था. So obviously option number 3 is correct. That is 7 is not equal to 1 and another and something is there. So वहाँ पे एक मिस्टेक किया है. अगेन वो टपल लिस्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक्स किया है. उसके बाद जो लिस्ट एम्प्टी डिलीट वाला वहाँ पे भी कुछ लोगों ने मिस्टेक्स किए. ओके. So you have to take care of that. Read the option. हाँ. So once we have deleted the list, then how can it be defined? Like print should be not defined, like string or the variable is not defined. Yes. It is showing empty list. No, we are not deleting the list. We are deleting the indexes, ना? Yes or no? क्या लिखा था वहाँ पे? del list name ब्रैकेट में क्या लिखा था? कोलन, डायरेक्टली कोलन लिखा था ना. उसका मीनिंग क्या हो गया? सारे एलिमेंट क्या होंगे उसमें से डिलीट होंगे बाय डिफॉल्ट. हमने देखा था ना, सिंपल देखा था कि व्हेन वी आर डिस्प्लेइंग द लिस्ट बाय यूजिंग a in bracket colon only, so what will happen with this? MCQ क्वेश्चन भी था. यस. तो उसमें सारे क्या होंगे एलिमेंट्स वहां पे डिस्प्ले होंगे ना. यस और नो? क्लियर है? तो उस केस में क्या होगा? लिस्ट एम्प्टी डिस्प्ले होगा. मतलब क्या होगा? आउटपुट क्या होगा वहां पे? What is output? Only square brackets. Square brackets. Empty square brackets. Clear? Anjali? Yes, sir. Okay. So I thought the whole list will be deleted. No, whole list कब delete होगा? आपने simply लिखा होता delete L1. So in that case, your whole list will be deleted. Okay? So means there is no difference between the function clear and delete. No. Clear delete हम clear की जगह पे यूज कर सकते हैं, ऐसा उसका मीनिंग है. We can use as a delete as a clear का यूज कर सकते हैं वहां पे. Getting? Clear में क्या होता है? Tell me what is there in clear? So all items are. All items will be yes. और delete में क्या कर सकते हैं हम? Specific item भी delete कर सकते हैं ना. Yes. और पूरी लिस्ट भी डिलीट कर सकते हैं. यस और नो? Yes sir. और उस केस में क्या था जो आपके एग्जाम में एग्जांपल था अभी, उस केस में मैंने कंडीशन ऐसे लिखा DL लिस्ट नेम एंड इन ब्रैकेट ओनली आई हैव रिटन व्हाट? कोलन. तो उसका मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स से सारे एलिमेंट क्या होंगे? डिलीट होंगे. क्लियर है? Yes, अंजलि? Yes. Okay. And so what is the full form of ideally? So in the MCQs, you have not mentioned any of the option matching with the full form of ideally. What? Actually, learners का local है sir. Actually, there is one word का जो full form है वो missing है उसमें in the this thing MCQs में. Ideally का full form not right in any of the options.
आईडी ये लिखा है, फुल फॉर्म क्या दिया है? नहीं दिया है उसमें ऑप्शन में। नहीं सर, जो ऑप्शंस है उसमें नहीं दिया हुआ। Options wrong, sir. उसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग ना, उसमें ऑप्शन है ना। Yes, एनवायरमेंट sir. सर Environment. तो सिर्फ लर्निंग नहीं लिखा है सर, एनवायरमेंट लिखा है। एनवायरमेंट नहीं लिखा है क्या उसमें? एनवायरमेंट लिखा है, लर्निंग नहीं लिखा है। लर्निंग नहीं लिखा, हाँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, वो चेंज करेंगे, देखेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो एमसीक्यू बैंक में से, मतलब वी हैव एक्चुअली दैट एमसीक्यू बैंक इज क्रिएटेड actually previously no MCQ exam is there, but after lockdown those who want improvement in that specific subject, for those improvement examination is there, and that is online exam. तो उसका वो क्या होगा पूरे from Pune University, those who are taking the subject of that PPS, they have prepared that question bank regarding different questions, and those are in totally जो हुआ था total questions, for example ये 600 questions थे totally उस question bank में। तो हर एक फैकल्टी उन्होंने चेक किया होगा, नहीं पता नहीं, पर नहीं है क्या उसमें एल नहीं, क्या लर्निंग दिया नहीं उसमें? No, sir. नहीं, नो ठीक है, सर। तो एक्चुअल फुल फॉर्म क्या? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, गेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन। क्लियर है? हाँ यस सर। That Yes. question of print. हाँ, प्रिंट में क्या है, तो होगा ना, प्रिंट होगा, पूरा प्रिंट होगा वो। Sir, in ideally it was showing error, EOL error. यस सर, उसमें सर बैक स्लैश नहीं दिया था ना, तो फिर डबल कोट्स कैसे यूज कर सकते हैं? कहाँ पे बैक? अरे होगा ना, चेक इट। No, sir, it was not there. नहीं सर, वो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में कंफ्यूजन हो रहा था वहां पे जो दिया था क्वेश्चन में। सिंगल कोट से Actual किया में तो प्रिंट हो रहा था, डबल कोट से नहीं हो रहा था। जो एक्चुअल में सर ने डाला है ना, वो सही डाला है। यस, वो Single- करेक्ट है, लेकिन करेक्ट। पढ़ने आप देखो एक बार, चेक करो पे उसको। वो अलग है। आप जो देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, जो हमने कंसेप्ट लिया था, कौन सा एस्केप सीक्वेंस वाला, दैट इज डिफरेंट थिंग। जहाँ पे हमें डबल कोट्स वहां पे डिस्प्ले कर, वो स्टेटमेंट क्या था अभी? ठीक है, हम यहाँ पे ये करेंगे, रन करके देखेंगे, ठीक है। एनीबॉडी रिमेम्बरिंग द व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या था? हेलो, हम यहाँ पे रन करके देखेंगे ना डायरेक्टली। So it was print in the bracket, double I will- quote print, then triple okay. quote print hello, and then 3 times double quote. स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? नो सर। नो सर। वेट। Wait for 1 minute. Some problem is there. वो present नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सर दिख रहा है आपको? सर दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस Hello? सर। यस सर। नो सर। ओके पिन करना है बस। नो सर। पिन नहीं दिख रहा नो है। सर। पिन ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है सर, पिन करना है बस। हुआ है क्या अभी? अभी दिख Hello? रहा है, दिख रहा है क्या अभी? यस सर। यस सर, दिख रहा है। नो सर। नो सर। करो, नो check सर। करो। ब्रो फुल स्क्रीन ही नो नहीं सर। करो ना सर को। सर कौन पिन करो? पिन क्या का फुल अभी फॉर्म यस सर, दिख रहा है। वो पिन करना है, वो है उसमें। दिख रहा है क्या? दिख रहा है यस सर। सर। यस सर, मुझे दिख तो रहा दिख रहा है। है। यस सर। ओके, अभी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? No, यस सर। यस नो सर। सर। अरे, Yes, क्या sir. बोल रहे हैं आप? प्रेजेंटेशन को पिन करो ना। सर उन्होंने पिन नहीं किया है। सर वो पिन करना है। छोटा विंडो आता है, उसको पिन करो। अरे और सर वही पे पिन करो। नहीं सर। ओके, एक मिनट। प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना उधर? हाँ वहाँ पिन करो। अभी हो रहा है क्या? सर हाँ, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, वो मतलब जो गूगल ये जो है ना मीट, वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन को पिन करता है। पर अभी तो हमें पिन करने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो वो आपके इसमें होगा। वही ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, आपको दिखना ही चाहिए ना। बंद करो ठीक है, आई विल presentation और लेफ्ट फिर वन। मुझे तो ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट होता हूँ,
फिर से ट्राई करता हूँ। दिख रहा है सर। आप दिख रहा है सर। यस। यस सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, वो स्टेटमेंट डालो यहाँ पे। हाँ ठीक है, ओके। यही था ना? यस सर, नो? यस सर। Yes, sir. एक मिनट। एंड ऑफ फाइल बाय सर एक्चुअली उसमें जो था ना प्रिंट, उसके बाद देयर वाज इतना नहीं था, इतने ट्रिपल कोट नहीं थे, इट वाज एक प्रिंट। यस, कैसे कैसे था ये? ऐसा था? कैसे था? ऐसा सर था? The print hello was मैं in a triple डाल quote. आप देखो एक बार। ये प्रिंट था ये? यहाँ पे कोड था क्या ये वाला? सर जो डबल कोट और सिंगल कोट में जो स्पेस है वो ही नहीं दिख रहा था क्वेश्चन में, तो अरे कौन सा तीन डबल कोट है सिंगल कौन सा कोट थे, सिंगल वो कोट है वो तीन कैसे सिंगल पता कोट थे। कहाँ पे? यहाँ पे स्टार्टिंग में? हाँ, सिंगल सेकंड कोट प्रिंट से पहले, हाँ। ऐसा था ना? और वो डबल कोट सर नहीं था, डबल वो कोट नहीं था कौन सा? ये वाला? नहीं बीच में वाले पहला वो। वाला। और प्रिंट सेकंड ये प्रिंट वाला? के पहले वाला। हाँ दिस वो। वन? वो वाला नहीं था। ऐसा था क्या? सर सर कमेंट चैट बॉक्स में देखो। चैट बॉक्स में This देखो one. सर। यही था ना? यस हाँ। हाँ बराबर है ना? फिर ये करेक्ट Yes, आंसर है sir. ना? हाँ यही था। यस सर। ठीक है। नहीं सर, वो करेक्ट है, बट जो दिखा रहा था ना क्वेश्चन में, वो वहाँ पे स्पेस में डबल क्या कोट दिखा? हाँ, क्या होता वहाँ पे? जो आपने इंक्लूड किया था वो ना, समझ डबल नहीं कोट आ और रहा था सिंगल कि कोट। वो सिंगल वो कोट हम है लोगों या को डबल लगा कोट है। कि ओके डबल ओके कोट। ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके। एक्चुअली वहाँ पे स्क्रीनशॉट डालना चाहिए था मुझे, तो गलती से मैंने यस क्या सर। किया, वो टाइप किया था। और जब टाइप करने से क्या हो रहा है, वो एक्चुअली कंपाइलर एडिटर, इसका एडिटर कंपाइलर का, और जो हमारा गूगल फॉर्म का है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉन्ट वाइल वी आर अलग राइट, है। यस, हाँ फॉन्ट भी अलग है, यस यस। ठीक है, चलेगा। तो आपको क्लियर तो होगा नहीं ये पर क्वेश्चन? यस सर। यस सर। क्वेश्चन क्लियर है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll move forward. Fourth operation क्या था string वाला? What is the fourth operation? Slice ना? हाँ, slice actually slice operation हमने कहाँ पे देखा था? Where we have covered the topic slice operation. लिस्ट में। Yes, slice List में. operation. Yes. So what is slice? Anybody? What is slice? अरे हुआ है ना अभी? The slicing is taking a particular part of the string and not the whole string. Yes, I want to display something from that specific string. That is something means not index, for example, specific index, but range of that specific index from to this likewise. तो यहाँ पे क्या किया हमने? We have taken one string और यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा print in bracket str 1:5. So tell me what is the answer? This is called a slice operation. Hello. 1PHON. So it will be start from 1, that is YTHO. P Y T H O. n वहां पे लास्ट क्या, जो लास्ट p इंडेक्स होता है वो क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। ओके, सो लाइकवाइज प्रिंट इन ब्रैकेट str। आज का क्वेश्चन ऐसे ही था ना, डिलीट वाला? यस सर। Yes, sir. इससे क्या होगा? Yes, sir. सो व्हाट विल हैपन हियर? सो इट विल डिस्प्ले। तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखा था हमने? सिर्फ डिलीट और उसके बाद लिखा था str : ऐसे लिखा था ना हमने। यस और नो? ओके, क्लियर है? उसके बाद प्रिंट इन ब्रैकेट
str square bracket colon, for example यहाँ पे क्या लिखते हैं colon 6. So what will happen now? Python. पूरा होगा. So likewise questions will be asked in your examination regarding MCQ. What is the output of following lines of a following instruction of that specific string code? Okay. यहाँ पे क्या होगा? Y से Yes. 1 to का 1 से स्टार्ट होगा, मतलब क्या होगा? Y से स्टार्ट होगा. यस, और लास्ट में कंसीडर होगा लास्ट वन. ओके, क्लियर है? Y से. ओके, सो इंडेक्सिंग समझ में आया? इंडेक्सिंग जो हमने किया था उसके हिसाब से आपको ये करना है, आउटपुट निकालना है. अभी ये जैसे हमने क्या किया था, पॉजिटिव वाला देखा था. सिमिलरली क्या होता है नेगेटिव. हेलो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो भी है. प्रिंट str square bracket -1. What will happen now? Hello, print in bracket str bracket -6. क्या होगा? दोनों का आंसर बताओ. N and P. पहले n होगा, इसमें क्या होगा? p होगा ना. क्लियर है? Yes sir. Negative index, last index is always -1. वैसे जाएंगे -1 -2 likewise. Okay, now I will do one thing. अभी रेंज इसके हिसाब से प्रिंट इन ब्रैकेट str फॉर एग्जांपल -2 कोलन करेंगे. नाउ टेल मी व्हाट इज आंसर. ON. ON आ जाएगा. यस, ON आ जाएगा ना. यहाँ पे -1 क्या है हमारा? n ना. ओके, और -2 क्या है? O. सो -2 कोलन लिखा है तो ऑब्वियसली लास्ट वाला कैरेक्टर यहाँ पे आने वाला ही है, तो ON हो गया. ओके, क्लियर है? यस और नो? हेलो. Yes sir. Yes sir. str अभी नेक्स्ट आई विल डू कोलन -2. नाउ टेल मी द आंसर. PYTH ना, क्योंकि -2 पे क्या कौन सा वैल्यू स्टोर है? व्हाट इज द वैल्यू दैट विल बी स्टोर्ड इन? हेलो. यस, वो आंसर इज व्हाट? PYTH. क्लियर है? Yes sir. Those who want to write, they can write it. Okay, now next one I will do print bracket str colon -5 colon -2. Now tell me the answer. YTH. So definitely इस टाइप के क्वेश्चन होंगे. स्लाइस ऑपरेशन के ऊपर आपके एग्जाम में वन क्वेश्चन विल बी देयर. सम इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन एंड यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर फॉर दैट स्पेसिफिक. जो भी आपका इंस्ट्रक्शन उसका आउटपुट क्या होगा, दैट यू हैव टू राइट. ओके, ये हो गया स्लाइस ऑपरेशन. अभी स्लाइस में होता है स्पेसिफाइंग द स्ट्राइड व्हाइल स्लाइसिंग. एक और एक पॉइंट एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल वी विल कवर इट. टॉपिक इज व्हाट? स्पेसिफाइंग while slicing string. While slicing string. जैसे कि अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. ओके, आई विल टेक वन एग्जांपल. बड़ी स्ट्रिंग लेता हूँ इसमें. वेलकम of Python. And do one thing. I will do one thing. Print bracket str. इसको करने डालता हूँ.
यहाँ पे पहले सिंपल देखेंगे 2:10 ओके 10 ब्रैकेट str 2:10:1 देखो अभी स्लाइस ऑपरेशन तो हमने देखा इन द स्लाइस ऑपरेशन यू कैन स्पेसिफाई द जनरली क्या करते हैं हम फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट जो भी आपको जिस रेंज में आपको चाहिए दैट वी हैव टू डिस्प्ले बट यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द थर्ड आर्गुमेंट एज ए स्ट्राइड उसे क्या बोलते हैं हम स्ट्राइड while refer to the number of characters to move forward after the first character is retrieved from the specific string जैसे कि अभी बाय डिफॉल्ट जो स्ट्राइड होता है 1 होता है वो इसलिए देखो मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे यहाँ पे दोनों का आंसर क्या होगा सेम होगा सेम होगा बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है 1 से वो क्या होता है स्ट्राइड होता है स्ट्राइड 1 इज ऑलवेज देयर सो तो क्या आंसर होगा इसका क्लियर अभी क्या करूंगा मैं आई विल डू वन थिंग आई विल कॉपी दिस स्टेटमेंट और स्ट्राइड की वैल्यू में क्या करूंगा इंस्टेड ऑफ 1 आई विल डू 2 okay I will do 2 so what will happen anybody LOED तो इस केस में क्या होता है स्ट्राइड का मीनिंग क्या है एनीबॉडी हेलो हेलो इंक्रीमेंट नहीं इतने कैरेक्टर क्या होता है वो स्किप करता है देखो अभी यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा LOED सो देखो अभी L मीन्स क्या है हमारा इंडेक्स क्या है 2 इंडेक्स मतलब 2 इंडेक्स पे पहली वैल्यू कौन सी है व्हाट इज वैल्यू आपकी इंडेक्स नंबर 2 L तो L से स्टार्ट होगा और लास्ट इंडेक्स क्या कंसीडर करेगा वो 10 ना yes or no 10 मीन्स क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स क्या हमारा स्पेस है ना लास्ट एलिमेंट ओके इस हिसाब से किसके हिसाब से रेंज के हिसाब से तो 2 और 10 के बीच में से कुछ कैरेक्टर्स हमें स्ट्रिंग के कुछ एलिमेंट्स हमें डिस्प्ले करने हैं तो अभी 2 का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे फिर ये हो गया हमारा रेंज ये 2 का मीनिंग क्या हो गया हेलो व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ व्हाट इज कॉल्ड इट एज अ 2 कैरेक्टर स्किप कर 2 कैरेक्टर्स क्या करेंगे स्किप तो अभी देखो L के बाद क्या होगा L और C के बाद क्या आएगा O आएगा और M के बाद क्या आएगा E आएगा E और स्पेस के बाद क्या आएगा T आएगा अभी T के बाद क्या है T और O के बाद क्या अगेन स्पेस है बट स्पेस वहां पे क्या ऑब्वियसली क्या लिखा है हमने 10 लिखा है तो 10 इज एक्सक्लूडेड यस और नो क्लियर अभी यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा 15 करते नाउ एनीबॉडी कैन टेल मी द आंसर LOET स्पेस H तक जाएगा हाँ यस क्लियर है yes or no all of you clear with this yes okay so I will make one change अभी यहाँ पे 10 ही रखता हूँ and I will change the value of stride now tell me the answer LMT LE आएगा ना LE आएगा ना yes LE is the answer yes correct क्लियर है देखो L पहला उसके बाद 4 L पकड़ के 4 1 2 3 4 तो E आएगा E के बाद 1 2 3 4 और स्पेस हो गया खत्म क्लियर है यहाँ पे 15 करता हूँ फिर चेंज करता हूँ आई विल डू वन थिंग 15 नहीं ज्यादा करता हूँ 20 करता हूँ नाउ एनीबॉडी कैन टेल मी द आंसर LE स्पेस यस स्पेस आएगा उसके बाद भी स्पेस आएगा ना यस ओके 2 स्पेस आने वाले इसमें क्लियर है उसके बाद लास्ट में क्या होगा L होगा ना L आएगा यस क्लियर है ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस हेलो यस सर okay all of you clear with this stride and slicing operation any doubt एक्चुअली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं होगा ये जो पार्ट मैंने आपको बोला था ये वाला जिसमें पर यू कैन रिमेंबर दिस ओके पर इसमें क्या एक हमें रिवर्स के लिए पूछेंगे सो रिवर्स के लिए जैसे कि नॉर्मली हम स्ट्रिंग यूज करते हैं स्ट्रिंग का रिवर्स करना है तो नॉर्मली सी प्रोग्रामिंग हमने देखा होगा किसी ने जिन्होंने पढ़ा है तो सी में हम क्या करते हैं रिवर्स के लिए व्हाट यू हैव टू डू हेलो एनीबॉडी
लूप यूज करते हैं हम, ओके। पर यहाँ पे डायरेक्टली आपने क्या, यू कैन सिंपली राइट डाउन डबल कोलन -1, so it will reverse your string. So एग्जाम में पूछ सकते हैं which of the following stride or slice operation will be used to reverse the given string. So which one is there? Colon colon -1. Hello, hello. लास्ट एलिमेंट से Yes, last element क्या होता है हमारा? -1 -1. That's why we written here -1. Okay. So this is all about the what? Slicing operation. तो generally इसके ऊपर question होगा ही. One simple instruction they will give you, and they will ask what is the output of the given code with respect to that specific instruction. So this is all about. हाँ, tell me. सर -1 स्टेप के लिए होगा ना सर? हेलो, हाँ सर, -1 स्टेप के लिए होगा ना? कैसे -1 स्टेप के लिए कैसे होगा? मतलब रिवर्स ऑर्डर में स्टेप चल रही है। रिवर्स ऑर्डर में स्टेप। Yes, sir. हाँ यस string, सर हाँ, string or reverse order by setting the value of stride to -1. Yes, yes, correct. Yes, perfect. तो यहाँ पे -2 करेंगे तो क्या होगा फिर? What will happen? String will be taken backward by step -2. -2. ओ -2 से होगा, सर, ओ से स्टार्ट होगी। O से स्टार्ट होगी, ओके, O से स्टार्ट होगी, n से होती है। -n से होगा ही ना रे, वही तो बोल रहा मैं। वहां पे तो स्ट्राइड तो होता ही है, यहाँ पे भी वैसे ही है, -1 से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ ओनली व्हाट विल हैपन, क्या हो गया था? स्टेप चेंज हो जाता है। हाँ, स्टेप चेंज हो रहा है सिर्फ, ओके। सो -2 मतलब क्या, अभी देखो ये -2 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद h क्यों आया वहां पे, n के बाद -2 का स्टेप, -2 स्ट्राइड। हाँ, ये स्ट्राइड कर रहे हैं हम, तो n o का स्किप हो गया, उसके बाद h हो गया, h के बाद क्या स्किप हो गया, h और स्किप हो गया, t स्किप हो गया, उसके बाद क्या है, y आ गया, ओके। सो लाइकवाइज यू विल गेट द आउटपुट। सो यहाँ पे -3 करेंगे तो व्हाट विल हैपन? n के बाद सीधा t, n के बाद t आएगा, उसके बाद स्पेस आएगा, स्पेस के बाद r होगा, r के बाद अगेन स्पेस होगा, स्पेस के बाद क्या होगा, फिर से t होगा ना, t के बाद एक स्पेस अगेन t होगा, t के बाद m होगा, m के बाद आई थिंक l होगा। क्लियर है ना? yes or no? yes, क्लियर है? nt स्पेस r, ओके। So this is all about the stride operation and slicing operation with respect to string. अभी दो और फंक्शन अभी डायरेक्टली सिलेबस में दिए, वो ORD फंक्शन एंड CHR फंक्शन। सो डायरेक्टली वो देखेंगे। सो वी विल कमेंट दिस। Those who want to write it, they can write it. The stride operation and slice operation. Okay. So next one is what? Hash ORD and CHR functions. फिर देखो ये the ORD function returns the ASCII code of given character and CHR function returns the character represented by the ASCII, मतलब opposite. So anybody know, tell me what is a ASCII number or ASCII code? किसी को पता है ASCII? ASCII वैल्यू हर एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है प्रोग्रामिंग में, और एनी कैरेक्टर वी कैन कॉल इट एज व्हाट, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू होती है कुछ। तो फॉर एग्जांपल स्मॉल a हम लिखते हैं जब, व्हेन यू आर राइटिंग द स्मॉल a, तो उसकी ASCII वैल्यू क्या होती है? 97। ओके, एंड कैपिटल A की 65, 66 लाइकवाइज A to Z लाइकवाइज। वैसे हम एक एग्जांपल सिंपल देखेंगे यहाँ पे। देखो अभी CH इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली पहले A लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट इन ब्रैकेट, क्या फंक्शन बताया था मैंने, टू गेट ASCII वैल्यू ऑफ दैट ORD फंक्शन। यस, ORD फंक्शन। सो आई विल राइट ORD इनबिल्ट फंक्शन इज देयर, वहां पे CH लिखा मैंने। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे नाउ? व्हाट इज आंसर? 97। वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH1 लेंगे और यहाँ पे सिंगल कोट में कैपिटल A लिखेंगे, ओके।
और यहाँ पे प्रिंट करके, so simply directly question होगा what will happen with respect to ORD function and CHR function with respect to that, जो भी आपका ऑप्शन होगा that with respect to option you have to write to choose your answer. इस केस में क्या होगा? 65. ओके, सर वो समझ नहीं आया। कैसे आया सर? अच्छा यहाँ पे CHR में क्या लिखा कैरेक्टर है? CHR क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? इंटीजर चाहिए। अरे गलती से, यस यस यस, CHR नहीं चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे ORD लेना चाहिए। यस, तो हमें आंसर क्या चाहिए? 97 है 65, क्लियर है? एस की वैल्यू हर एक कैरेक्टर का क्या होता है? एस की वैल्यू होता है, जैसे कि स्मॉल एस की होती है 65, स्मॉल बी की होती है 66, लाइकवाइज जेड की क्या होगी फिर? 90। कैपिटल सर, हेलो, कैपिटल ए बी सर, कैपिटल ABC लाइकवाइज। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे जेड लिखा मैंने, तो कुछ तो वैल्यू वहां पे डिस्प्ले होगा 122, करेक्ट है? 97 से स्टार्ट करो आप, जेड की वैल्यू 122 आ रही है क्या? यस सर। करेक्ट ना? यस और नो? यस। सिंपली आप क्या करना है, आपको याद रखना है पहली वैल्यू ए और लोअर केस और अपर केस का एग्जांपल होता है इस केस में। सो लोअर केस A to Z एंड अपर केस A to Z। तो अपर केस में कैपिटल ए की वैल्यू 65, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब जेड करेंगे हम, कैपिटल जेड, वो क्या होगा? 96 90 होगा ना? 66 से स्टार्ट हो रहा है ना? हेलो, 65 से, तो 65 इज कैपिटल ए, 66 इज कैपिटल बी, लाइकवाइज 90 क्या होगा हमारा? सो व्हाट इज द यूज ऑफ ORD फंक्शन नाउ? टेल मी, व्हाट इज द यूज ऑफ ORD फंक्शन? To get the ASCII value of that specific character. Okay? Yes. Clear है? Okay. So ORD का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑर्डिनल फंक्शन। Okay. CHR ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे। सो ये फॉर एग्जांपल 112 पास किया मैंने, दिस इज ASCII वैल्यू ऑफ सम ऑफ द कैरेक्टर। इसकी होगी, अभी देखो चेक करेंगे, बराबर है? पी आ रहा है क्या? स्मॉल पी। सो देखो अभी आप कैलकुलेट करके देखो, 97 से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल 100 लिखेंगे तो ऑब्वियसली 96, 97, 98, 99, 97, 98, 99, 900 ABCD। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। ऑल ऑफ यू क्लियर द मीनिंग ऑफ ORD फंक्शन एंड CHR फंक्शन? सर 91 से 96 के बीच में क्या क्या होता है? वैल्यू होंगे अभी कुछ, तो देखेंगे, चेक करेंगे। क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो भी कीज होते हैं ना, उसके हर एक की ASCII वैल्यू होती है, याद रखना है आपको। जो कीबोर्ड में कीज होते हैं ना, जनरली क्या है आपको याद, हमें मतलब जनरली जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके सिवा, बाकी हमें याद नहीं रख सकते ना हर चीज, हर एक वैल्यू नहीं याद रख सकते ना। यस और नो? दिस इज बैक एंड प्रोसीजर। ऑल ऑफ यू क्लियर? हेलो। तो यहाँ पे जनरली आपको एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप जो भी एग्जांपल होता है एग्जाम में, तो उस केस में कैपिटल A टू कैपिटल Z और स्मॉल a टू स्मॉल z ऐसे होंगे। आप कुछ यहाँ पे और कुछ डाल सकते हो, जैसे कि 94, टेक इट, तो वैल्यू होगा। क्या हो गया? हेलो, टू द पावर ना? हेलो, यस सर, क्लियर हो? यस और नो? यस सर। सो दीज आर द डिफरेंट कीबोर्ड के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसकी हर एक की क्या होती है? ASCII वैल्यू होती है। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस और नो? हेलो। Yes. So to get that ASCII value, what we have to use? ORD function. And to get opposite of that, what we have to use? CHR function. ASCII का कैरेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे? CHR यूज करेंगे, और कैरेक्टर का हमें ASCII वैल्यू चाहिए तो what we have to use? ORD function. All of you clear with this? Hello? Yes, sir. It returns. Yes sir. क्या लिखेंगे यहाँ पे? It returns ASCII value of
कैरेक्टर। और यहाँ पे क्या है, इट रिटर्न्स कैरेक्टर ऑफ दैट ASCII। क्लियर है सबको? ASCII का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? हेलो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है? यस। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? इतना याद रखना है, बाकी याद मत रखो क्या ASCII वैल्यू क्या, हमें क्या कुछ लेना देना है उससे। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दैट? कहाँ पे हमें लगने वाला है क्या वो क्लियर है? सिंपली आप क्या करो, कैरेक्टर के याद रखो, वो स्टार्ट होता है किसका, कैपिटल ए का 65 और स्मॉल ए का क्या होता है 97। क्लियर है? 97। ओके, तो वहां से आप याद, और जनरली जो भी होंगे ना क्वेश्चंस वो सिंपली होते हैं, ABCD के बीच में होता है। और जनरली क्वेश्चन होता है जो आपको एमसी मतलब आपको ये निकालना होगा उस केस में, तो ए का ही पूछते हैं, या बी का, या सी का, और डी का, लाइक। और पूछा तो भी आपको क्या करना है, काउंट करके जाओ वहां से 97 टू Z तक और 65 टू कैपिटल Z तक। क्लियर है सबको? एनी डाउट? हेलो? यस सर। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट कुछ हमने ऑपरेटर ऑलरेडी देखा था, वो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। व्हाट इज इन एंड नॉट इन ऑपरेटर? आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप ना रे, मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी कौन से होते हैं? आइडेंटिटी is and is not। यस, तो अभी हम देखेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस ORD एंड CHR फंक्शन? Yes, sir. यस सर। Okay. So next one is in and not in operators। ये सिंपल है, ऑलरेडी देखा है हमने, सिर्फ हमें क्या करना है, चेक करना है, यूज कैसे करना है वो देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं S1 नाम का एक स्ट्रिंग लेता हूँ and I will write down one statement, welcome to the world of Python। One of the message I will take, and I will take एक string लेता हूँ और string में वैल्यू एक फॉर एग्जांपल 10 स्टोर करता हूँ। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, ये चेक करूँगा, एक कंडीशन डालता हूँ, if str2 in str1, और वहां पे एक मैसेज प्रिंट करूंगा, फाउंड प्रिंट सर S1 होगा। S1 यस, आई विल टेक S1, यहाँ पे लिखूंगा फाउंड। ओके, देन आई विल राइट एल्स पार्ट एंड वहां पे क्या प्रिंट होगा, नॉट फाउंड, print in bracket not found। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या लिया है, हेलो, व्हाट आई वैल्यू आई हैव टेकन, एक स्ट्रिंग लिया मैंने S1, उसमें एक मैसेज है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। अभी यहाँ पे चेक str2 वहां पे प्रेजेंटिंग है, वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, विच ऑपरेटर वी हैव यूज, इन। तो सिंपली यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए हमारा, फाउंड। क्लियर है ना? अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली आई विल डू वन थिंग, नॉट इन करूंगा, नॉट इन। सो व्हाट विल हैपन नाउ, क्या होगा, नॉट फाउंड आएगा ना। क्लियर है? इन और नॉट इन का यूज विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, और यहाँ पे अभी क्या करूंगा मैं, आई विल डू वन थिंग, द वन करता हूँ। सो व्हाट विल हैपन नाउ, फाउंड आएगा। फाउंड क्यों आएगा यहाँ पे अभी वो, बिकॉज हमने वहां पे क्या लिखा है, नॉट इन लिखा है, तो वहां पे इन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको इन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, नॉट फाउंड। क्लियर है? कंडीशन चेंज करना पड़ेगा आपको। सो एनी डाउट रिस्पेक्ट टू इन एंड नॉट इन ऑपरेटर? Simply we have to check whether that specific element will be there in specific string or not. So for that purpose, that is simply membership operator उसके लिए यूज होता है, वो हमने लिस्ट में भी देखा था। ओके, क्लियर है? हेलो? यस सर। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मेंबरशिप ऑपरेटर्स, दैट इज इन एंड नॉट इन? तो जनरली क्या होता है, क्वेश्चन इसमें क्या होंगे, लाइकवाइज कोड विल बी गिवन यू फॉर यू इन एग्जाम, 4 और 5 लाइन कोड विल बी देयर,
and what is the output of that specific code. You have to, जैसे आज के क्वेश्चन आपने देखे हुए, most of the questions are likewise what will be happen after executing these specific statements or code or instruction. So likewise the code will be there with respect to in and not in operator also, and ORD and CHR function also, and then slice also and stride also. So any doubt? Clear है? Okay. So अभी लास्ट पार्ट हम देखेंगे आज का, कंपेयरिंग ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स। कंपैरिजन तो ऑलरेडी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे, कौन से होते हैं? Equal to yes कंपेयरिंग स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा ये अभी कंपेयरिंग स्ट्रिंग में कैसे होता है। जो हमने अभी ASCII देखा ना, वो पार्ट यहाँ पे लगने वाला है हमें। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी हियर प्रिंट और ब्रैकेट में कुछ तो अमोल, ओके, और इज इक्वल टू क्यों फॉल्स आया यहाँ पे? Because capital लोअर केस अपर केस वहां पे कंपेयर किया। ओके, सो इज इक्वल टू क्या किसके लिए होता है? तो ऑब्वियसली कंपैरिजन में, कंपेयरिंग स्ट्रिंग में आंसर किस में मिलेगा हमें? ट्रू और फॉल्स में। यस और नो? क्लियर है? हेलो? Yes, sir. सो विल डू वन थिंग नाउ। अभी ये तो हो गया इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ओके, नॉट इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स ना? क्लियर है? कंपेयरिंग ऑपरेटर इक्वल टू, यही आपको याद है। वहां पे जो आपका कंफ्यूजन आज हुआ ना, वो वहां पे यहाँ पे हो गया। तो वहां पे क्या दिया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑप्शन में सिंगल इक्वल टू था ना? यस और नो? Yes. 9 सिंगल इक्वल टू 9, तो उससे क्या होता है? whether that statement is correct? No, sir. It gives you error ना? It gives you error ना? Yes or no? Yes, sir. So वहां पे जब डबल इक्वल टू होता, then your option is, both options are correct, A and C. Clear है? That thing you have to remember, difference between the equal to operator and assignment operator, वो चीज आपको याद रखनी है। Okay? Next, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? See here, now I will do one thing. Int Amol greater than false। ट्रू क्यों आया यहाँ पे बताओ? अभी आपको मैंने अभी बताया ना, मैंने अभी एस की वैल्यू यहाँ पे रेफर होने वाला है हमारा। क्यों? बिकॉज स्मॉल ए की एस की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल ए। ग्रेटिंग यहाँ पे मैं कमेंट में लिखता हूँ, यहाँ पे आई विल राइट अ कमेंट, एस की वैल्यू ऑफ ए इज कितना है? 97 ना? इज ग्रेटर देन एस की वैल्यू ऑफ 65 कैपिटल ए दैट इज 60। कंपेयर उससे 1 by 1 कंपेयर होता है वहां पे। ओके, क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? Yes, sir. नाउ आई विल डू वन थिंग, प्रिंट इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इस केस में क्या होगा? False. False. Why? Because s की वैल्यू ऑफ स्मॉल y इज ग्रेटर देन Small a. यस। यहाँ पे कंपेयर s की वैल्यू, यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मैं, पूरा नहीं लिखता। s की वैल्यू ऑफ स्मॉल a ग्रेटर देन नॉट y इज ग्रेटर देन a। क्लियर है? सर सिर्फ फर्स्ट लेटर की वैल्यू कंपेयर करते हैं क्या? नहीं, एक एक कंपेयर करता है, मतलब पहले दो सेम होंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे सिंपल है। इस केस में क्या होगा? ए से में तो m और y कंपेयर होगा। क्या कंपेयर करेगा यहाँ पे? तो फॉल्स। फॉल्स ही आ रहा है आंसर। क्यों फॉल्स आ रहा है? देखो अभी पहले तो वैल्यू कंपेयर हो रहा है ना, पहले तो कंपेयर किया, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? पहला वैल्यू सेम आ रहा है ना?
तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, सेकंड वैल्यू चेक करेगा। M और एम, Y compare सो एम में क्या, एम और वाई में कौन बड़ा है सबसे, वाई बड़ा है। यस, गेटिंग। तो देखो यहाँ पे मैं और एक कमेंट लिखता हूँ सिंपली, पहले क्या करता हूँ, ये तो हो गया, और यहाँ पे आई विल राइट, यही कॉपी करता हूँ और आई विल राइट द कमेंट नीचे आगे, वहाँ पे कमेंट लिखता हूँ। क्या कमेंट लिखेंगे यहाँ पे, ए। सो यहाँ पे क्या कमेंट लिखेंगे हम, एस्की ऑफ वाई ग्रेटर देन, यहाँ पे कंपेयर क्या होगा बताओ अभी, एम। क्लियर है, यस और नो? ऑल ऑफ यू क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में होंगे, कंपेयरिंग द स्ट्रिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल ट्रू और फॉल्स में आंसर होगा उसका ऑब्वियसली। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी देखो प्रिंट बी अमोल लिखा मैंने, और यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा, और अगेन अमोल लिखा। अभी इस केस में आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली फॉल्स होगा ना। False होगा sir. जब मैं यहाँ पे इक्वल टू करूंगा, सो इट विल गिव यू आंसर व्हाट, ट्रू। True आ जाएगा. ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है। क्लियर है, यस और नो? यस ऑल ऑफ यू क्लियर है? कौन कौन से ऑपरेटर्स है यहाँ पे बताओ मुझे। तो यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ मैं, आई विल राइट द कमेंट। पहला क्या हो गया, इक्वल टू कॉमा करके, नेक्स्ट वन कंपैरिजन ऑपरेटर पूछेंगे तो डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेटर, उसके बाद लेस, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमा लेस देन smaller than equal to ओके। क्लियर है? than equal to. क्लियर है सबको? यस सर। एनी डाउट? कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में है सबको? Yes sir. हेलो, यस सर। okay, Yes sir. so Yes, which sir. part we have covered in today's lecture? Which part? Slicing of Slicing of string. स्लाइसिंग में क्या लिखा हमने, स्पेसिफिक पार्ट हमें स्ट्रिंग का डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल सेकंड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक मुझे डिस्प्ले करना है, तो लाइकवाइज आई विल राइट द स्लाइसिंग ऑपरेशन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू कोलन। ओके, देन स्ट्राइड में क्या किया था हमने, बाय डिफॉल्ट स्ट्राइड कितना होता है, 1 होता है, बराबर ना? ओके, सो उसके हमने उसको हमें चेंज करना है, कैन टेक 2 और 3 और 4 लाइकवाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू इट। ओके, सो हो गया स्ट्राइड ऑपरेशन। उसके बाद ORD और CHR फंक्शन देखा। ORD फंक्शन किसके लिए यूज होता है, टू कन्वर्ट ASCII वैल्यू, To get गेट द ASCII वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर। वो हमने अभी ऑलरेडी देखा है कैसे डिस्प्ले होते हैं ASCII वैल्यू। कीबोर्ड में जितने भी कीज होते हैं उसके हर एक हर एक के की के पीछे एक ASCII वैल्यू होता है। जैसे कि मैंने आपको सिंपली बताया कि कैपिटल A टू कैपिटल Z एंड स्मॉल a टू स्मॉल z। ओके, लाइकवाइज उसके बाद इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स, ये क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर, मतलब वो एक आधा चीज स्ट्रिंग हमें चेक करना है whether that is present in that specific string or not. Okay, so for that purpose in and not in we will use. And next one is what, comparing the strings. तो comparing the string में हमने क्या देखा था, whether that two strings are equal or greater or equal, likewise you can see. अभी len function use करके भी compare कर सकते हैं ना, yes or no? हेलो, सो लेन फंक्शन से क्या करने, मतलब लेन से भी हम कंपेयर कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, str1 इक्वल टू sr1 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल अमोल, एंड देन sr2 इज इक्वल टू अनिकेत। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने इन ब्रैकेट लेन ऑफ sr1 greater than len of sr2। क्या होगा आंसर, false। It will print false. क्लियर है, फॉल्स। ओके, यस सर। ये चेंज किया ऑपरेटर मैंने। True. सो यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, यस और नो? Yes sir. और ऊपर वाला जो वहां पे ASCII वैल्यू कंपेयर होता है, ऑल ऑफ यू गेटिंग, yes or no? Clear है? Yes sir. So what is the homework that I have given in last lecture? Homework क्या दिया था? Writing the program prompts the user to enter a number between 1 to 7 and Yes, to simple display था the कुछ, yes, corresponding day of the
सिंपल है, उसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं था ना, सिंपल है ना। हेलो, Yes, sir. कैसे किया है किसी ने, एनीबॉडी, शेयर मत करो स्क्रीन, डायरेक्टली आप ये करो, यू कैन डायरेक्टली सर एनीबॉडी वो कैन। लिस्ट, सर वो वीकडेज का लिस्ट बना के फिर उसमें प्रिंट कर सकते हैं, लाइक इनपुट ऐसे ही कर वैल्यू सकते हैं, लेके हाँ आप एंड देन लिस्ट वन ऑफ बाय वन एक्सप्लेन इंडेक्सिंग करो। कर सकते शौनक, आपने जो लॉजिक लेके आए वो रीड करो एक बार, ठीक है। हैं। हेलो, यू कैन, यस, शेयर मत करो, डायरेक्टली रीड करो प्रोग्राम। हाँ सर, सर मैंने एक डेज का लिस्ट बनाया सर डेज इक्वल टू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टू संडे, ओके, संडे यस, तक। फिर n इज इक्वल टू इंट इनपुट डे नंबर, सर वो डे का नंबर लेगा। ओके सर फिर बोलते सर फिर थर्ड लाइन प्रिंट डेज ऑफ। पर उस केस में क्या होगा, आपको इनपुट 0 देना ही पड़ेगा ना। सर डेज n-1 लेंगे सर। ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। n-1 लिया तो आ जाएगा सर। ओके, तो आगे क्या किया आपने फिर, इनपुट लिया हो गया सर। ओके सर इससे अभी नंबर अगर इनपुट किया तो फिर वो करस्पॉन्डिंग डे प्रिंट हो जाएगा। इनपुट क्या लिया आपने, n इज इक्वल टू int एंटर इनपुट एंटर नंबर, इंट इनपुट डे नंबर। ओके, तो आपने नंबर क्या इनपुट लिया, फॉर एग्जांपल 4, तो वहां पे आगे क्या कंपेयर करना पड़ेगा ना कुछ, तो चेक किया आपने। प्रिंट ऑफ डेज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड यस यस, परफेक्ट, ऑल ऑफ यू क्लियर। यस सर। और एक सिंपल और एक लॉजिक कर सकते हैं, इफ एल्स और एलिफ से कर सकते हैं ना, उसमें कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। Yes, sir. उसमें क्या होगा, 4 to 5 स्टेटमेंट्स यू हैव टू टेक एलिफ के, मतलब हर एक बार 1 इज इक्वल, मतलब क्या करना पड़ेगा, 7 स्टेटमेंट्स आएंगे उसमें। यस, 7 स्टेटमेंट्स आर देयर टोटल। इफ क्या होगा, फॉर एग्जांपल चॉइस इज इक्वल टू और नंबर इज इक्वल टू 1, देन संडे लाइकवाइज एलिफ लाइकवाइज। यस, एनी अदर लॉजिक। सर मैंने ना हाँ, डिक्शनरी यूज करके किया था। डिक्शनरी यूज करके, तो हुआ क्या, key as a the day number and value as a the day। ओके, उसके बाद इनपुट लिया और डिक्शनरी के स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखते ना, वो डाल दिया और प्रिंट कर दिया। ओके, पर वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपने की लिखी, हुआ एग्जीक्यूट। यस सर। ओके, सो स्क्वायर डायरेक्टली की, हाँ की आपने क्या किया, एक्सेस किया, ऐसे बोल रहे हैं आप। यस सर। ओके, so all of you clear with this problem statement that we have given yesterday's lecture? Yes, sir. Okay, so write down today's problem statement for homework. Okay, I will give you one. Write a program to print following pattern. Write a program to print following pattern. यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे लिखता हूँ मैं। Then A B C D E F. Write a program to display following pattern. दिख रहा है सबको पैटर्न? Yes. क्या लिखा है? A B A B C A B C D A B C D, ओके। और ये आपको क्या करना है, कैरेक्टर लेके करना है, मतलब आपको यहाँ पे क्या जरूरत पड़ने वाली, विच फंक्शन यू रिक्वायर्ड, CHR फंक्शन। यस, परफेक्ट। एंड देन विच फॉर लूप भी लगाना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. For वो भी नेस्टेड फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। यस, कर सकते हैं सर स्ट्रिंग्स। yes, sir. हाँ करो, आपको जैसे करना है, मैंने जो बताया वैसे नहीं, आपको जो लॉजिक अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं वैसे। ओके, ट्राई इट। बट क्या आना चाहिए, A B A B C A B C D A B C D E and A B C D E F। क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So any doubt regarding today's session? Yes, और sir. कुछ वहाँ पे MCQ जो आज के एग्जाम है उसमें कुछ डाउट्स है,
कहाँ पे आंसर आपको गलत लग रहा है कि ऑप्शन गलत था कोई, वो क्वेश्चन छोड़ के जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया था, वो वाला छोड़ के। क्लियर है? हेलो, अरे बोलो ना, यस और नो, कुछ तो बोलो। Yes. And all of you are done with your activity, hacker rank activity। 2 लोगों ने अपलोड किया है, 2 ग्रुप ने एटलीस्ट, मतलब टोटल 6 स्टूडेंट्स। एक ग्रुप आई थिंक संस्कृति का है और एक ग्रुप संदेश मुंडे का है ना? यस और नो? कुणाल एंड संदेश, यस और नो? यस सर। यस, कुणाल एंड संदेश ने एक्टिविटी कंप्लीट किया, उसके बाद संस्कृति अथर्व यादव, उसके बाद उसमें कौन है, संचित भी ना, इंग्लिश, और कौन है 4th वन? संस्कृति इस ग्रुप अथर्व गायकवाड़। अथर्व यादव, हाँ यस। सो अदर्स आल्सो कंप्लीट द एक्टिविटी अप टू, कब तक बोला था मैंने, 18 ना? 18, yes, you can do it. So give your attendance. Roll number 1. Present, sir. I will stop first recording.